نے کئی بار مجھے ایسی گہری نظروں سے دیکھا کہ میں الجھ کر رہ گیا۔ تفریح کے دوران اگر کوئی ناخوشگوار بات انسان کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو اسے اپنا موڈ ٹھیک کرنے میں خاصا وقت لگتا ہے۔ میں بھی اسی کیفیت سے دو چار تھا۔ دوسری طرف سارہ اور جین کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا۔ جمیل انکا نے مجھے تذبذب کی حالت سے دو چار دیکھ کر اپنے نوکیلے پنجوں سے ٹہوکا دیا۔ تم 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر لو، میں جو تماشا دکھاؤں گی اسے دیکھ کر تمہارے پیٹ میں بھی بل پڑ جائیں گے۔ کوئی ایسی شرارت نہ کرنا کہ سارہ اور جم کی موجودگی میں مجھے شرمندہ ہونا پڑے۔ فکر مت کرو، انکا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں جو کچھ کرنے جا رہی ہوں ہو سکتا ہے اس میں تمہاری جین کا مستقبل بھی شامل ہو۔ کیا مطلب؟ میرا کہا مان لو جمیل، آنکھیں بند کر کے ظاہر کرو تم کسی مشتاق جادوگر کی طرح اپنے کمرے میں موجود ارواح کو آواز دے رہے ہو۔ وہی سماں باندھو جو سلیمان بے کو نیچا دکھانے کے لیے اپنایا تھا۔ باقی کام میرا ہوگا۔ میں نے انکا کے اصرار پر آلتی پالتی مار کر آنکھیں بند کر لی، چہرے پر سنجیدگی طاری کر لی، اس طرح ہونٹوں کو جنبش دینے لگا جیسے کوئی عمل کر رہا ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ اس وقت متعدد نگاہیں میری حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہی ہوں گی۔ میں بڑی دیر تک اسی پوزیشن میں بیٹھا بدبداتا رہا۔ پھر جب میرے کانوں میں سارہ اور جین کے علاوہ ملے جلے کہکوں کی آوازیں گونجنے لگیں تو میں سمجھ گیا کہ انکا نے اپنے پرسرار حیرت انگیز قوتوں سے پکنک پر آنے والوں کے لیے کوئی نیا شگوفہ چھوڑا ہوگا۔ کھنکتے نکرئی کہکوں کی آوازیں ہر لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ جب میری قوت سماعت میں جین کی بوڑھی ماں کی گھٹی گھٹی چیخ بھی گونجی، میں نے آنکھیں کھول دیں۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو مجھے بھی اپنی ہنسی پر قابو پانا دشوار ہو گیا۔ جین کی بوڑھی ماں زمین سے تقریباً 10 فٹ اوپر فضا میں اس طرح معلق نظر آ رہی تھی کہ اس کے اور ویل چیئر کے درمیان 2 فٹ کا فاصلہ بھی تھا۔ وہ خوف زدہ انداز میں چیخ رہی تھی اور بار بار نظریں جھکا کر پھٹی پھٹی نظروں سے اپنی ویل چیئر کو دیکھ رہی تھی۔ پکنک پر آنے والے افراد رفتہ رفتہ اس حیرت انگیز منظر کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ ان کے چہروں پر گہری سنجیدگی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات مسلط تھے۔ یو آر گریٹ دولت علی، جین بچوں کی طرح تالیاں بجانے لگی۔ یہ خوشگوار لمحے ہماری زندگی میں ہمیشہ ایک یادگار حیثیت سے محفوظ رہیں گے۔ میں آہستہ سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ جم اور ولیم نیونا روڈ بھی اٹھ کر میرے قریب آ گئے۔ سارہ اور جین پہلے ہی میرے قریب موجود تھے۔ اب میں آپ حضرات کو 2 مختلف سمت میں حرکت کرنے والے دائروں کا حیرت انگیز کمال دکھاؤں گا۔ میں نے پیشہ ور کھیل تماشا کرنے والے بازیگروں کا انداز اختیار کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا، میری درخواست ہے کہ کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے، نہ منہ سے کسی قسم کی آواز نکالے۔ مجمع کو سانپ سونگھ گیا۔ سب کی نظریں جین کی ماں پر تھیں جو چیختے چیختے بے حال ہو رہی تھی۔ میں نے ایک ہاتھ بلند کر کے یوں ہی الٹے سیدھے دائروں کی شکل میں ہلانا شروع کیا۔ ہجوم انگشتیں بنداں رہ گیا، انہیں سانپ سونگھ گیا، خون ان کی شریانوں میں منجمد ہو گیا۔ وہ بے جان بت کی مانند اپنی اپنی جگہ ایستادہ ویل چیئر اور جین کی ماں کو مختلف سمتوں میں گردش کرتا دیکھتے رہے۔ کھرانٹ بڑھیا کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس نے اچانک چیخنا بند کر دیا۔ شاید دہشت کی وجہ سے اس کے دل نے دھڑکنا بند کر دیا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ سکتے کی کیفیت سے دو چار ہو۔ میں بدستور بلا مقصد ہاتھ کو حرکت دیتا رہا۔ ویل چیئر اور جین کی ماں دونوں مخالف سمتوں میں دائرے کی شکل میں حرکت کرتی رہیں۔
फिर दोनों दायरे गर्दिश मुकम्मल करने के बाद एक दूसरे के नीचे ऊपर आकर रुक गए। मैंने हाथ को आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जानब झुकाया तो जीन की मां भी हरकत करती हुई नीचे उतरकर व्हील चेयर पर टिक गई। फिर जब व्हील चेयर जैसे अंदाज में हरकत करती हुई सब्दे पर आकर रुकी तो पूरा इलाका तालियों की आवाज से गूंजने लगा। जीन खुशी से बेहाल होकर मुझसे लिपट गई। पिकनिक पर मौजूदा दूसरे अफराद भी मेरे गिर्द हल्का तंग करने लगे। बेशुमार कैमरों की फ्लैश गनें जाग उठी और मुझे अपनी हमाकत का एहसास हुआ। मैं एक बार पहले भी लंदन के अखबारात की शह सुर्खियों में जगह पा चुका था। मेरे सिलसिले में बड़े बड़े इदारिये लिखे गए। मुझे रातों रात वो शोहरत मिली कि मेरी आज़ादी से घूमना फिरना महाल हो गया। मैं जहाँ जाता पहचान लिया जाता। लोग मुझसे मशरक के जादूगर के बारे में दरियाफत करते। मगरब के लोग हिंदुस्तान से ज़्यादा तवहम परस्त होते हैं। मैं उनसे पीछा छुड़ाने की खातिर उल्टी सीधी हरकत, हैरत अंगेज और नाकाबिले यकीन कहानियां सुनाकर पीछा छुड़ा लेता। इस बार मैं किसी शोहरत से बचना चाहता था। मैंने इनका को याद किया। वो शोक अदा 1.5 बालशत की काफर अदा हसीना हंसती मुस्कुराती इठलाती बल खाती मेरे सर पर आ गई। उसकी रग रग से शोखी फूट रही थी। ये सब कुछ अच्छा नहीं हुआ इनका रानी, मैंने संजीदगी से कहा। मैं अगर इन शोभदा बाजियों में घिर गया तो मेरी वापसी में फिर दुश्वारियां पैदा हो जाएंगी। तुम जानती हो कि मुझे कलदीप के अधूरे काम निपटाने हैं और भी बहुत कुछ करना है। मेरे लिए क्या हुक्म है मेरे आका? इनका ने अलादीन के जादुई चिराग के जिन में अंदाज़े गोरश बजा लाते हुए दरियाफत किया। मैं चाहता हूं कि अखबारात में मेरी तस्वीर शाया ही ना हो। तुम इस बात का ऐलान कर दो। इनका ने बड़े एतमाद से कहा। वही होगा जो तुम चाहोगे मेरे अजीज दोस्तों। मैंने बुलंद आवाज में मजमा को मुखातब किया। मैंने इस वक्त किसी की फरमाइश पर जो मुजाहरा किया वो मेरे कमाल फन का एक अदना और हकीर नमूना था। मैं अनकरीब किसी बड़े क्लब या होटल में बाकायदा अपने कमालात का हैरत अंगेज मुजाहरा करने का इरादा रखता हूँ। मेरी दरख्वास्त है कि आपने इस वक्त जो तस्वीर खींची हैं उन्हें ज़ाया कर दें, वरना कबल अज वक्त अगर मेरी तशहीर गलत अंदाज में हुई तो मेरा आइंदा का प्रोग्राम बुरी तरह मुतासर हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी दरख्वास्त को रद्द नहीं करेंगे। शुक्रिया। मैंने ऐलान ख़त्म किया तो इनका मेरे सर से उतर गई। फिर जो कुछ हुआ वो मेरे लिए गैर मुतवक्का नहीं था। मजमा में मौजूद अफराद ने यके बाद देगरे अपने अपने कैमरे खोलकर नेगेटिव्स ज़ाया करने शुरू कर दिए। इनका अपना काम मुकम्मल करके दोबारा मेरे सर पर आ गई। आपने ऐसा क्यों किया मिस्टर दौलत अली? वलीम न्यूवार्डो ने, जो मुझसे बहुत ज़्यादा मुतासर नज़र आ रहा था, दबी दबी ज़ुबान में कहा। यहाँ तो शोहरत और पब्लिसिटी की खातिर लोग लाखों खर्च करने पर आमादा हो जाते हैं और आपने मुफ्त में हाथ आया एक सुनहरी मौका ज़ाया कर दिया। मेरा ख्याल है कि जो लोग शोहरत की बुनियाद पर नाम कमाते हैं उनमें खुद एतमादी का फुकदान पाया जाता है। मेरा फलसफियाना जवाब ने वलीम ल्योटा को लाजवाब कर दिया। जीन ने, जो बड़ी बेतकल्फी से मेरी कमर में हाथ डाले खड़ी थी, अचानक नजरें घुमाकर उस जानब देखा जहां कुछ अफराद उसकी मां के गिर्द घेरा डाले खड़े थे। जीन के साथ साथ मैं भी उस तरफ लपका। लोगों को हटाता हुआ मैं आगे पहुंचा तो जीन की मां की हालत काबिले तशवीश नजर आई। वो अपनी व्हील चेयर पर इस तरह एक तरफ ढलकी नजर आई जैसे उसकी रूह कफ से अनसरी से परवाज कर चुकी हो। जीन दौड़कर मां से लिपट गई। घबराओ मत जमील, इनका ने मेरे कानों में सरगोशी की। ये सिर्फ बेहोश हुई है, इसे जल्द ही होश आ जाएगा। वलीम, सारा और जिम भी हमारे करीम आ गए। जीन ने मां की हालत देखकर सिसकना शुरू कर दिया। मैंने उसे तसल्ली दी। हमें फौरन किसी करीबी अस्पताल चलना चाहिए।
वलीम ने जज्बाती लहजे में कहा। फिर उसने तेजी से आगे बढ़कर जीन की मां को व्हील चेयर से उठाकर अपने शानों पर डाला और गाड़ी की सिमत दौड़ने लगा। मैंने पहली बार विलियम लियोना रोड को तफसीली नजरों से देखा। वो एक सेहतमंद खूबरू नौजवान था। उसके चेहरे पर झलकने वाली खुद एतमादी इस बात की गमाजी कर रही थी कि वो अपने अंदर हर किस्म के नामसाइद हालात से निमटने का हौसला रखता है। उसकी आंखों में नजर आने वाली चमक बताती थी कि उसके अंदर आगे बढ़ने और अपनी मंजिल को पा लेने का वो यकीन मौजूद था जो इंसान को दूसरों से सरफराज रखता है। मजमूई तौर पर वो एक बाहिम्मत और पुरएतमाद शख्सियत का मालिक नजर आया। अस्पताल पहुंचने के 20 मिनट बाद जीन की मां को होश आ गया, लेकिन वो अभी तक हैरत से आंखें फाड़े इस तरह एक एक को देख रही थी जैसे उसे अपनी जिंदा बच जाने का यकीन नहीं आ रहा हो। सारा और जिम अस्पताल से वापस चले गए। वलीम हमारे साथ फार्म हाउस तक आया। मैं महसूस कर रहा था कि जीन उसकी शख्सियत से खासी मुतासर नजर आ रही थी। जीन के अलावा मैं भी उस नौजवान के पुरखुलूस जज्बे से मुतासर हुआ। लंदन और अमेरिका की मसरूफ़ ज़िंदगी में किसी के पास इतना वक़्त नहीं होता कि वो रिफाही या अमदादी कामों में ज़्यादा हिस्सा ले सके। इन कामों के लिए अलहदा इदारे होते हैं जहां कुल वक्ती तौर पर मुलाजम कारिंदे खिदमात अंजाम देते हैं। तुम अब कैसा महसूस कर रही हो माम? जीन ने बड़े प्यार से माँ की खैरियत दरियाफ्त की, जो अस्पताल से वापसी के बाद अपनी ख्वाबगाह में बिस्तर पर लेटी छत को इस तरह देख रही थी जैसे वो अभी तक खुद को हवा में मुअल्लक महसूस कर रही हो। विलियम जीन के साथ ही खड़ा था। मारिया और मॉर्गन भी एक तरफ खड़े फिक्रमंद नजर आ रहे थे। मैं बिस्तर की दूसरी जानब था। इनका मेरे सर पर पुश्त पर हाथ बांधे इस तरह टहल रही थी जैसे कोई गुत्थी सुलझाने पर गौर कर रही हो। खुदा का शुक्र है कि मैं जिंदा बच गई, वरना। जीन की मां ने लंबा सांस लेकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। फिर गर्दन घुमाकर मेरी सिमत देखते हुए नहीफ आवाज में बोली, दौलत अली, तुमने जो हैरत अंगेज कमाल दिखाया वो मैं कभी फरामोश नहीं कर सकती, लेकिन कबल अज वक़्त मुझे अपने इरादे से आगाह कर देते तो शायद मेरी ये हालत ना होती। मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने एतराफ़ किया। मुझे आपके इल्म में लाए बगैर ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि आपको इस वक्त सुकून और आराम की ज़रूरत है। विलियम ने अपनी राय का इजहार किया। मुझे यकीन है कि 1-2 घंटे पुरसकून नींद सो लेने के बाद आप खुद को पहले से बहुत बेहतर महसूस करेंगी। विलियम की तजवीज़ माकूल थी। जीन ने मां को एक मुफरा मशरूब कलब पिलाया, फिर हम सब बाहर आ गए। विलियम ने जाने की इजाज़त तलब की तो जीन ने उसे रोक लिया। विलियम की खातर मदारत किए बगैर सिर्फ शुक्रिया पर तनख्वाह देना यकीनन बद अखलाकी होगी। जीन मारिया के साथ किचन की सिमत चली गई। मॉर्गन बाहर जा चुका था। मैं विलियम के साथ लाउंज में बैठ गया। इनका ने टहलना बंद करके विलियम को संजीदगी से घूरना शुरू कर दिया। वो किसी गहरी सोच में मुस्तगरक नजर आ रही थी। मिस्टर दौलत अली, मैं इसे अपनी खुशबख्ती समझता हूँ कि आप जैसे बड़े फनकार से मेरी मुलाकात हो गई। विलियम ने इनकसारी से काम लिया। आज का दिन मेरी ज़िंदगी में एक याद बनकर हमेशा आपकी याद दिलाता रहेगा। मुझे आपसे मिलने का बेहद इश्तियाक था। जिम और सारा अक्सर आपके नाकाबिले यकीन कारनामों का जिक्र किया करते थे। खास तौर पर जिम ने मुतअद्दिद बार इस बात का एतराफ़ किया है कि आपने एक नामुमकिन काम को मुमकिन बनाकर उसकी तरक्की में नुमायां किरदार अदा किया। मेरे इसरार के बावजूद उसने किसी बात की वजाहत नहीं की। क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि वो कौन सा नामुमकिन काम था जिसे आपने बेकौले जिम चुटकी बजाते सर अंजाम दे दिया? मुझे अफसोस है कि मैं आपकी ख्वाहिश का एहतराम करने से कासर हूँ, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। वो एक हसास नौइयत का ऐसा अहम राज है जिसकी तशहीर
दो हुकूमतों के सिफारती ताल्लुकात के दरमियान दरारें भी पैदा कर सकती है। शायद इसीलिए जिम ने भी इस सिलसिले में कभी जुबान नहीं खोली। कुछ देर बाद जीन भी हमारे साथ शरीक हो गई। मारिया के साथ मिलकर उसने विलियम की तवाज़ा की खातर खासा एहतमाम कर डाला। मारिया बड़ी नफासत से मेज़बानी के खिदमात अंजाम देने लगी। मॉर्गन की वापसी को अभी सिर्फ 3 दिन गुजरे थे, लेकिन इस मुख्तसर अरसे में भी मारिया के हुस्न, उसके रख रखाव और सेहत पर बड़े खुशगवार असरात मुरतब हुए। मुझे उसके वजूद में जिंदगी की एक नई लहर दिखाई दी। जमील, इनका ने जीन और विलियम को मसरूफ़ गुफ्तगू पाकर बड़ी संजीदगी से दरियाफ़त किया। विलियम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? पहाड़ और गिलहरी का जोड़ मुमकिन नहीं इनका रानी। मैंने उसे छेड़ने की खातर अफसोस का अंदाज इख्तियार किया। विलियम का ख्याल दिल से निकाल दो। अगर मैं जीन की मोहब्बत का रुख विलियम की तरफ फेर दूं तो कैसा रहेगा? इनका ने मेरे लतीफ़ मजाक को यकसर नज़रअंदाज करते हुए बेदस्तूर संजीदगी से कहा, तुमने इतनी जल्दी में ये प्लान क्यों मुरतब किया? मैंने वजाहत चाही। मैंने विलियम के बारे में तमाम मालूमात हासिल कर ली हैं। इनका ने विलियम को देखते हुए जवाब दिया। विलियम का बाप लियोनार्डो एक करोड़पति शख्स था। उसने ये दौलत बड़ी मेहनत और मुशक्कत से कमाई थी। बड़ा आदमी बनने से पहले वो एक मामूली मोटर मैकेनिक था, लेकिन उसके एक हैरत अंगेज ऐजाद ने रातों रात उसे करोड़पति बना दिया। मगर अफसोस कि जिस औरत की कंपनी में वो मुलाजम था, उसने ना सिर्फ लियोनार्डो की उस ऐजाद को अपने नाम से मंसूब करा लिया, बल्कि उसकी ज़ुबान बंद रखने की खातर उसके साथ शादी का ढोंग रचाने में भी जल्दबाजी का मुजाहरा किया। लियोनार्डो इस मकार औरत के फरेब को ना समझ सका। वो बुनियादी तौर पर एक सीधा सादा, शरीफ, मेहनती और ईमानदार शख्स था। बड़ी आसानी से उस बेवा के झांसे में आ गया जो पहले ही अपने मरहूम शोहर की जमा जायदाद पर कब्जा जमाए बैठी थी। मार्टिना नहायत जानबाज और जहां दीदा औरत थी। उसने ऐसा चक्कर चलाया कि लियोनार्डो ने उस बदकार औरत को खुश नसीबी समझकर कबूल कर लिया। उस गरीब को अपनी गलती का एहसास उस वक्त हुआ जब मौत उसकी जिंदगी के दरमियान चंद लम्हों का फासला रह गया। क्या मतलब? मैंने दिलचस्पी लेते हुए दरियाफत किया। उस दगाबाज औरत ने लियोनार्डो के गिर्द अपने हुस्न और जवानी का ऐसा हसीन और मजबूत जाल बुना कि वो उसकी था भी ना पा सका। इनका ने बात जारी रखी। मार्टिना ने लियोनार्डो से अपनी मोहब्बत और शादी की ख्वाहिश का इजहार करने से पहले ही एक अच्छी खासी बड़ी रकम उसके नाम से बैंक में जमा करा दी। लियोनार्डो की नज़रों के सामने शानदार मुस्तकबल था। जिंदगी संवारने और बड़ा आदमी बनने की ख्वाहिश किसी भी शख्स को दीवाना कर सकती है। लियोनार्डो के साथ भी यही हुआ। मार्टिना खेली कूदी तजर्बाकार औरत थी। उसने शादी करने की गरज से शहर से दूर आर्जी तौर पर एक शानदार रिहाइश गाह किराए पर हासिल की। शादी के बाद उसने लियोनार्डो को मसरूफ रखने की खातर उसे जिंदगी की बेशकदर आसाइशें उसी इमारत में फराहम कर दी जहां कई ज़रूरतमंद खूबरू नौजवान जवान मुलाजमाएं भी उसका दिल बहलाने को मौजूद थीं। लियोनार्डो शराब और शबाब के दलदल में फंसा आने वाले खुशगवार मुस्तकबल के ख्वाबों में गुम रहा। शादी के 1.5 साल बाद मार्टिना ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया जिसे लियोनार्डो की ज़ात से मनसूब किया गया। क्या विलियम मार्टिना और लियोनार्डो की मोहब्बत का नतीजा नहीं? मैं चौंका। मगरबी तहजीब में 50% बच्चों को उनकी माँ के नाम से पहचाना जाता है। इनका ने हकारत से कहा, शायद मार्टिना भी मुकम्मल यकीन और एतमाद के साथ नहीं बता सकती कि विलियम किसका नुतफ़ा है। लियोनार्डो का क्या बना? मैंने पहलू बदल कर सवाल किया। बड़ी तवील दास्तान है जमील साहब, इनका ने सर्द आह भरी। विलियम की पैदाइश के 4 साल बाद गरीब लियोनार्डो कसरत शराब नोशी की वजह से
एक रात अपनी ख्वाबगाह में मुर्दा पाया गया। हकीकत उसके बरअक्स थी। उसे स्लो पॉइजनिंग के जरिए रास्ते से हटाया गया। मरने से बेशतर मार्टिना लियोनार्डो से एक दो सादा चेकों पर दस्तखत करा के बैंक में उसके नाम पर जमा रकम का बेशतर हिस्सा वक्तन फ़ौक्तन कैश करा के अपने अकाउंट में जमा करा चुकी थी। मौत के बाद लियोनार्डो के नाम पर महज $2000 बैंक के खाते में पाए गए। उसके बाद विलियम को ज्यादा दिनों मार्टिना की आगोश की गर्मी नसीब नहीं हुई। उसकी परवरिश एक गवर्नस के जिम्मे कर दी गई। 5 साल तक वो फरीबी औरत किसी न किसी तरह उसके वजूद को अपनी छत के नीचे बर्दाश्त करती रही। फिर विलियम को दूर दराज के एक तालीमी इदारे के हॉस्टल में दाखिल करा दिया। 9-10 साल तक विलियम इसी हॉस्टल से वाबस्ता रहा। फिर उसने अपनी अमली जिंदगी में कदम रखा। इनका ने सांस लेते हुए अपना सिलसिला कलाम जारी रखा। हॉस्टल से फारग होने के बाद वो मार्टिना के साथ बेमुश्किल 2 माह गुजार सका। फिर उसकी सर्द मोहरी और बेअतनाई से दिल बर्दाश्ता होकर अलहदगी इख्तियार कर ली। अब ये एक इंश्योरेंस कंपनी में मुलाजिम है। इसका किरदार बेदाग है, मेहनती और ईमानदार भी है। मुझे यकीन है कि जीन के लिए विलियम एक बेहतरीन इंतखाब साबित होगा। क्या जीन आसानी से मेरी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाएगी? मैंने विलियम की ज़िंदगी के तमाम नशीबो फराज की तफसील जानने के बाद सवाल किया। जिम और जीन की मोहब्बत को बार बार क्यों फरामोश कर देते हो? इनका ने चहकते हुए जवाब दिया। अगर मैं एक बार तुम्हारी खातिर जीन और जिम के दरमियान नफरत की दीवार खड़ी करके जिम और सारा के सितारे मिला सकती हूँ, तो दूसरी बार भी तुम्हारी मजबूरियों के पेशे नज़र जीन और विलियम को भी शीरी फरहाद के सांचे में ढाल सकती हूँ। मैं भूल गया था इनका रानी कि तुम हर मर्ज का इलाज हो, मैंने शर्मिंदगी का इजहार करते हुए कहा। इस बात का ख्याल भी रखना कि जीन की माँ के दिमाग में लड़के का इंतखाब करते वक्त स्टेटस का कीड़ा जरूर कुलबलाएगा। तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, उसने मैनीखेत अंदाज में जवाब दिया। खामोशी से देखते रहो कि तुम्हारी इनका रानी अब क्या गुल खिलाती है। मैंने कोई मजीद बात नहीं की। मैं इनका की ज़ात से बखूबी वाकिफ था। मेरा उसका बरसों का साथ था। मैं जानता था कि जो वो कहती है उसे कर गुजरने की ताकत भी रखती है। कुछ देर बाद विलियम जाने के इरादे से उठा तो इनका मेरे सर से उतर गई। जीन विलियम को रुखसत करने की खातिर दरवाजे तक गई। मारिया बर्तन समेट कर किचन की सिमत जा रही थी। मैं उसके सरापे को देखने लगा। फिर ही मेरी नज़र दरवाजे की सिमत उठी तो मेरे अंदर रकाबत का जज्बा भड़क उठा। बैरानी दरवाजे के करीब जीन बड़े वालहाना अंदाज में विलियम की बाहों में सिमटी नजर आई। विलियम उसके होंठों का रस कशीद कर रहा था। मुझे यकीन था कि इनका इस वक्त जीन के सर पर मौजूद होगी। मैंने जल्दी से नजरें फेर ली। मेरी रगों में खून की गर्दिश तेज हो गई थी। जब जीन ने मेरे करीब आकर बड़ी मासूमियत से मुखातब किया, कहाँ गुम हो दौलत अली? उसके चेहरे की भूलपन से साफ जाहिर था कि वो अभी अभी तक इनका के ज़ेरे असर थी। मैं तुम्हारी माँ के बारे में गौर कर रहा था। मैंने झूठ का सहारा लिया। मुझे शायद उनके साथ जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। वो मेरे पहलू में बैठ गई। फिर पिकनिक के दौरान होने वाली छोटी छोटी बातों को मज़े लेकर दोहराने लगी। मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहा। काश मैं जीन को बता सकता कि उसे विलियम की बाहों में मचलता देखकर मेरे दिल पर क्या क़यामत गुजर गई। इनका ने भी कांटा बदलने में बड़ी इजलत का मुजाहरा किया। वो रात मैंने कांटों के बिस्तर पर करवटें बदल बदल कर गुजारी। इनका ने विलियम और जीन के सितारे मिलाकर मुझे हालात से रहाई दिलाने की कोशिश की थी, लेकिन जीन को किसी दूसरे की बाहों में देखना मुझे गवारा नहीं था। मैं उसके हुस्न का दीवाना था। उसकी खातिर पिछली बार मैंने लंदन में अपने क़याम को तूल दिया। जिम या उसके मिशन की कामयाबी या नाकामी से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। जीन जिम की दीवानी थी। मैंने किसी सपेरे की तरह उसे अपनी बीन की धुन पर झूमने का आदी बनाने में बड़ी सब्र आजमा घड़ियां गुजारी।
इनका के जरिए मैं एक पुल में उसकी जवानी की सरकश अदाओं को ताराज कर सकता था। इनका को एक इशारा बहुत होता। जीन खुशी खुशी मेरी बाहों में सिमटने को अपने लिए एक एजाज समझती। सब कुछ मुमकिन था, हर बात मेरे इख्तियार में थी, लेकिन जीन दूसरी लड़कियों से मुख्तलिफ थी। मैं उसे खिलौने की तरह इस्तेमाल करके तोड़ना नहीं चाहता था। मैंने अपनी तशंगी बुझाने की खातिर उसकी रजामंदी का तवील इंतजार किया। मुझे मेरे ख्वाबों की ताबीर मिल गई। इनका ने जिम को दरमियान से हटा दिया। मैदान मेरे लिए साफ हो गया। फिर हालात ने जीन को मुझसे दूर कर दिया। मुझे बड़ी इजलत में लंदन को खैरबाद कहना पड़ा। वक्त गुजरता गया, मैं शायद जीन को भूल गया था। नहीं, वह मेरे दिल के नाहाँ खानों में दुबकी बैठी किसी मुनासिब वक्त का इंतजार कर रही थी, और हालात ने उसे मौका फराहम कर दिया। कुलदीप की जवान मौत ने मेरी कमर तोड़ दी, महरूमिया का शिकार कर दिया। फिर ऐन उस वक्त जब मैं मौत और जिंदगी के दुराहे पर खड़ा था, जीन ने अचानक सामने आकर हैरान कर दिया। उसकी लगन सच्ची थी। उसने मुझे बदतरीन हालात में अपनी महकती बाहों का सहारा दिया और मैं शशदर रह गया। अजीब मजाक था। जब मैंने चाहा जीन की आमादगी भी शर्त हो तो उसने मोहलत तलब कर ली। अब वो गले मिल गले आमादा थी तो प्रीतम लाल ने कुलदीप की आत्मा के बेचैन हो जाने का एहसास दिलाकर मेरे कदमों में बेड़ियां डाल दी। मेरी माजी की दास्तान मुख्तलिफ जात पात की खूबरू लड़कियों के साथ गुजरे हुए रंगीन लम्हों से भरी पड़ी है। एक से एक सरकश हसीनाएं मेरी ख्वाहिशात की दहलीज पर घुटने टेकने पर मजबूर हो चुकी थी। मैं बेधड़क उनके हुस्न, उनके गरूर को पैरों तले रोनता, उनके जिस्म के गाढ़े और ताज़ा खून से इनका रानी के वजूद को सैराब करता, फिर आगे बढ़ जाता। मेरे ऊपर कोई रोक टोक, कोई बंदिश नहीं थी। प्रीतम लाल ने भी मुझे मौज मेला करने से मना नहीं किया। मैं जीन के जवान महकते वजूद से भी अपनी प्यास बुझा सकता था, लेकिन मैं उसके जहन में तामीर मोहब्बत और अकीदत के ताज महल नहीं ढाना चाहता था। वो मेरी नज़रों के सामने किसी दूसरे की बाहों में बाहें डालकर बोसो किनार करे, ये भी मेरी बर्दाश्त से बाहर था। इनका पहले ही दबी जुबान में इस खतरे का ऐलान कर चुकी थी कि आग और पेट्रोल का साथ मुनासिब नहीं। मैं तकमीले आरजू में मसलहतों से काम लेता रहा। मैंने देर कर दी और वक्त मेरे हाथ से फिसल गया। रात मेरी आंख देर से लगी। दूसरे दिन इतवार था, लेकिन मेरी नींद पूरी नहीं हो सकी। किसी ने मुझे झंझोड़ कर बेदार किया और मैं हड़बड़ा कर उठा। जीन शब ख्वाबी के बारीक लिबास में मेरे सामने मौजूद थी। उसका सीमी बदन झलक रहा था। मेरे अंदर सोया हुआ तूफान जागने लगा। मेरे फगार सीने में सुलगते अरमानों ने मुझे उकसाने की कोशिश की। जमील अहमद खान, तुम्हें इससे खूबसूरत मौका शायद दोबारा मैसर ना हो। तुम्हारा महबूब तुमसे एक कदम के फासले पर है। हाथ बढ़ाओ, लचकती शाख को अपने बाजुओं में घसीट लो। पके हुए फल को तोड़ने में देर करना दानिशमंदी के मुनाफी है। तुमने देर की तो कोई और उचक ले जाएगा। अपनी प्यास बुझा लो, वरना हमेशा कफे अफसोस मलते रह जाओगे। मेरे जिस्म पर चींटियां रेंगने लगीं। बारीक गाउन से झलकते जीन के जिस्मानी नशीबो फराज बड़े हेजान अंगेज थे। मैंने हाथ थामकर उसे अपने पहलू में घसीट लिया। उसके बदन की सूंधी सूंधी खुशबू मुझे दीवाना कर रही थी। जब उसकी घबराई हुई आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, दौलत अली अभी कुछ देर पहले जिम का फ़ोन आया था। उसने मुझे एक परेशान कुन इत्तला दी है। जीन मेरी बाहों में कसमसा रही थी। उसकी आवाज़ सदा बेसहरा होकर रह गई। मैंने उसकी क़यामत को पूरी शद्दो-मुद्दत से अपने अंदर जम करने की कोशिश की। जी ने मामूली मज़ाहत करते हुए मुझे दोबारा मुखातब किया। मेरी बात समझने की कोशिश करो दौलत अली। जैकब एक औरत को कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उसका पुराना रिकॉर्ड ज़रूर खंगाला जाएगा। जिम और सारा दोनों जानते हैं कि वो मेरे यहाँ मुलाजमत कर चुका है। कुछ सोचो दौलत अली, जैकब के मफरूर मुलज़म होने की बात खुल गई तो मुझसे भी बात पुरस ज़रूर होगी।
میں نے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپ کر مجھ سے دور ہو گئی۔ جیکب کے کسی عورت کو قتل کر دینے کی اطلاع نے اسے خاصا پریشان کر دیا۔ بڑی الجھی دکھائی دے رہی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ انکا کے خراٹوں کی ہلکی ہلکی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ میں نے اسے عالم تصور میں دیکھا، دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنائے وہ اس سر رکھے بے خبر سو رہی تھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ کل رات تک اس کا چہرہ زردی مائل تھا، لیکن اب کنداری انار کی مانند سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے نازک ہونٹوں پر سرخی تیر رہی تھی۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ انکا کا اطمینان اور چہرے کی رنگت چگلی کھا رہی تھی کہ وہ کسی کے تازہ خون سے اپنے وجود کو سیراب کرنے کے بعد بے فکری کی نیند سے دو چار ہے۔ جو خبر جین نے سنائی تھی اس کی پشت پر انکا کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے، میں نے سوچا۔ دولت علی، جین نے بے چینی سے کہا، تم نے کہا تھا کہ جیکب کی طرف سے مجھے بے فکر ہو جانا چاہیے، لیکن اس کا سابقہ ریکارڈ۔ اپنے آپ کو ہلکان مت کرو، میں نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ تمہارا نام کسی طرح درمیان میں نہیں آنے پائے گا۔ انکا کو بیدار کرنے کی خاطر میں نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو کنگھی کی طرح بالوں میں پھیرا۔ وہ توبہ شکن انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی نگاہوں سے خمار چھلک رہا تھا۔ جین کو صبح میرے کمرے میں دیکھ کر وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی، لیکن بڑے تجاہل عارفانہ سے جماہی لیتے ہوئے بولی،